So good afternoon to one and all, and welcome to Lotus Academy online classes. I am Manish Shukla, and today we are going to start our first class on the concept of English grammar, and it is transformation. This topic is not only useful for academics, but it will be also helpful for your competitive examinations like CUT or any other one-day examination. So let's start the topic. So actually, beta, I am just going to use bilingual way so that it might be easy for every boards, whether they are related to CBSE boards or whether they are related to state boards. So come to the point without wasting a minute. We are going to start our first topic that is called transformation. So at first, we should be aware what is transformation. Actually, this word is a combination of two words. First is transfer and second is form. It means transformation word is a combination of two words transfer plus form. Transfer means to change. Transfer means to change. So what are we going to do? We are going to change the grammatical forms of sentences. So what is transformation? Transformation है क्या बेटा? Transformation दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला है ट्रांसफर और दूसरा है आपका फॉर्म. ट्रांसफर मीन्स होता है बेटा टू चेंज, बदलना, और फॉर्म मीन्स होता है रूप. तो रूप को बदलना, बदलने को हम और भी शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो अंतरण बोला जाता है. इसलिए कुछ स्टेट बोर्ड्स में इसको रूपांतरण कहते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? Transformation is a process. Transformation is a process in which we change a sentence from one grammatical form to another without altering its sense. कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम वाक्यों को व्याकरण की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कुछ इस तरह से बदलते हैं कि उनका जो बेसिक मीनिंग होती है, उनकी जो ओरिजिनल मीनिंग होती है, जो उनका मूल रूप होता है, वो चेंज नहीं होता. अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? वी आर गोइंग टू अल्टरनेट द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर. हाउ इज इट पॉसिबल? इट विल नॉट चेंज इट्स सेंस. सो लेट्स सी बेटा. In junior classes, we have seen suppose that in your junior classes you have got a question कि change the following sentences as directed in the brackets. कि छोटी क्लासेस में हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपको एक क्वेश्चन मिला जिसमें कहा गया कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, कि दिए गए वाक्यों को उसी क्रम में बदलिए या उसी तरह से बदलिए जैसा कि ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में उसको मेंशन किया गया है. और मान लीजिए कि जो एग्जांपल आपके सामने आया उसमें लिखा है बेटा कि ही इज अ गुड बॉय and you have to change the sentence in negative form. So what you are going to do? You are just going to mention not just after helping verb, but look here. In the way you have created a contrast or difference in the given sentence, the sentence has been completely changed. भाई आपने किया क्या? क्वेश्चन में ये दिया गया था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, और आपको सेंटेंस में दिया गया है कि ही इज अ गुड बॉय एंड यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म. So you applied not just after your helping verb, by auxiliary verb. They are 24 and 24 helping verbs are also called as a 24 sisters. तो हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट को एप्लीकेबल कर दिया. लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या इन दिए गए क्वेश्चन और इस आंसर का सेंस आपस में बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया. So it will be not called an example of transformation at any rate because its sense has been completely changed. इसका सेंस पूरी तरह से बदल गया है, इसलिए हम इसके आंसर को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते. इट विल बी कॉल्ड ओनली फॉर्मेशन. ये केवल फॉर्मेशन कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के क्राइटेरिया में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो आप बोलेंगे सर ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन का एग्जांपल आपने बता दिया है तो क्या इस दिए गए सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि चेंज करते समय इसके सेंस में, ओरिजिनल सेंस में कोई भी डिफरेंस ना आए? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं बेटा. ही इज
not a bad boy. If he is not a bad boy, it means he is a good boy. So what we have done? We have just changed the sentence from one grammatical form to another without altering its sense. So now in this topic we are going to do the same. इस टॉपिक में हमको यही करना है बेटा. और मैं आपसे एक बार फिर बता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो केवल सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता या फिर वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता. अगर आप सीयूटी या फिर और ओडीआई एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो यू विल हैव टू फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश ग्रामर. So be ready from today and be attentive because nothing is impossible in the world to gain. We have here the proverb. If fortune favors the brave, life is a quest for brilliance and brave. Nothing can deter them, not even just a vicious wave. So let's start the topic, beta. Now we are going to move. What is the first pattern? What is the first process of this topic? ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए कई तरह की प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है बेटा. और उसी प्रोसेस में से जो सबसे पहली प्रोसेस है वो है आपकी बेटा बाय यूजिंग एंड रिमूविंग adverb to. By using and removing adverb to. And in this subheading, we have to study two sub-methods. At first, we are going to apply by removing adverb to. And after that, we have to study by using the adverb to. कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि अगर हमें बाय यूजिंग एंड रिमूविंग एडवर्ब को पढ़ना है तो सर पहले आप रिमूव करना क्यों सिखाते हैं. तो मैंने उनको कई बार ये कहा बेटा कि अगर तुमको ये देखना है कि घर बनाया कैसे जाता है तो पहले अगर किसी का घर गिरा हो तो वहां जाकर देख लो उसमें कौन सा कंपोजिशन ऐड किया गया था. ईंट थी, सीमेंट थी, बालू था या कुछ और भी था. तो ये प्रोसेस जो है बेटा इसको सीखने के लिए हमें करना क्या है, हमें इन दो सब हेडिंग्स को आगे चल के देखना होगा. लेकिन इनको देखने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज एन एडवर्ब. Adverb क्या है? And you have studied the definition of adverb in your junior classes. Junior classes में आपने जब part of speech को पढ़ा होगा तो वहां पर टीचर्स ने बताया होगा कि what is the definition of an adverb. Adverb किसे कहते हैं? तो अक्सर हमें वो मेमोराइज डेफिनेशन सामने देखने को मिलती हैं कि adverbs are those words that modify verb. कि adverb ऐसे शब्द हैं जो वर्ब को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता को बढ़ाते हैं या उनकी विशेषता को बताते हैं. बट इन रियलिटी एडवर्ब हैज द एबिलिटी नॉट ओनली टू मॉडिफाई वर्ब बट आल्सो इट हैज द स्ट्रेंथ और कैपेसिटी टू मॉडिफाई एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब. एक एडवर्ब जो होता है वो केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, वो किसी एडजेक्टिव और साथ ही साथ एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. और कभी भी हम सेंटेंस में किसी वर्ड्स को पहले से ही हम ये नहीं कह सकते बेटा कि वो एडजेक्टिव है या फिर वो एडवर्ब है. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. तो चलिए उस पर फिर से हम कभी किसी क्लासेस में चर्चा कर लेंगे बेटा कि कैसे उनका रोल जो है डिसाइड किया जाता है. यहां हम देखते हैं बेटा कि एडवर्ब टू है क्या, जरा इनको देख लेते हैं. तो एट फर्स्ट वी आर वेरी क्लियर दैट टी डबल ओ टू वी आर गोइंग टू कॉल इन दिस प्रोसेस द वर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एडवर्ब. हम इस प्रोसेस में इस वर्ड को एडवर्ब के नाम से जानना चाहते हैं. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एडवर्ब टू. तो एक बात तो ये जान लीजिएगा बेटा कि व्हेन एडवर्ब टू इज फाउंड इन द कंपनी ऑफ इन्फिनिटिव टू, एक नई नई समस्याएं जनरेट हो रही हैं आज कि चलिए सर ये एडवर्ब टू है, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये तो इन्फिनिटिव टू कैसे आप इसको पहले से इन्फिनिटिव कह दे रहे हैं. That is so because students, we are going to see V1. It means first form of verb. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब भी आपके प्रीपोजिशन टू दिखाई दे तो कभी भी से प्रीपोजिशन मत कहिएगा. इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज इन्फिनिटिव. इसे क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनिटिव कहते हैं. और ऐसा क्यों है
because in that sentence it is going to describe purpose, ethical obligation as well as your duty, क्योंकि उस सेंटेंस में इसका रोल फिर हो जाता है किसी की नैतिक जिम्मेदारी, उसके उद्देश्य या कर्तव्य को बताना। इस पर भी आगे चलकर डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं बेटा कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एडवर्ब टू in the company of infinitive to in the sentence, it will always contain the sense of negative। अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ आपको इन्फिनिटिव टू मिल रहा है तो उस समय एडवर्ब टू हमेशा और हमेशा अपने आप में एक नेगेटिव सेंस को कंटेन करता है। तो सवाल ये उठता है कि सर कि चलिए कि अगर एडवर्ब टू जो है उसके साथ उस सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव टू मिल रहा है तो ये नेगेटिव सेंस को कंटेन करेगा, बट व्हाट अबाउट इफ द एडवर्ब टू इज अलोन इन द गिवन सेंटेंस, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड इन्फिनिटिव टू इन द इंडिविजुअल वन। क्या होगा कि अगर उस सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू मिले और उसके बाद हमें इन्फिनिटिव टू के दर्शन ना हो रहे हों? In that case, it will contain the sense of more than need। कुछ छोटी छोटी बातें देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अगर सेंटेंस बेटा एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू भी आपको मिल रहा है तो उस समय ये नेगेटिव सेंस कंटेन करेगा अपने आप में, लेकिन अगर उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब टू है तो उसका सेंस निकलता है बेटा मोर देन नीड, आवश्यकता से ज्यादा, जिसको हम ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के भी फॉर्म में जानते हैं। So without wasting any minute, we are going to start the first subheading by removing adverb to। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में सबसे पहली हेडिंग आपको मिलने वाली है by removing adverb to। तो चलिए देखते हैं बेटा इस हेडिंग से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी तक हमको ये पता चल गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में ट्रांसफर करने वाले हैं और कुछ इस तरह से जिससे कि उसकी जो सेंस है उस सेंस में बिल्कुल भी चेंजिंग आनी नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब हेडिंग जो आपकी है बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। फर्स्ट रूल, इफ द गिवन सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। फर्स्ट रूल का कहना है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर बिलोंग कर रहा हो, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको कोई सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही हो, फिर अप्लीकेबल किया गया हो एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव टू के साथ आपको V1 का फॉर्म मिल रहा हो, तो उस केस में हम करेंगे क्या बेटा, वी आर गोइंग टू चेंज एडवर्ब टू इन सो। Infinitive to will be changed in another form that is called that। After that we are going to repeat our S1 and according to tense of given sentence we are going to apply can not or could not। एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस बेस पर दिया गया हो कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ एडवर्ब टू, फिर उसके बाद बेटा एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव टू, V1 और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो हमें एडवर्ब टू को किसमें चेंज कर देना है, सो में चेंज करना है, इन्फिनिटिव टू को चेंज करना है दैट में, फिर सब्जेक्ट को हम रिपीट करेंगे, उसके टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट को एप्लीकेबल करेंगे और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को मेंशन किया जाएगा। जैसे He is too old to stand properly। आइए चेक करते हैं कि अभी तक जो लेक्चर दिया गया था क्या वो सही है या नहीं। हमने आपसे ये बोला था बेटा कि एडवर्ब टू के साथ अगर उस सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव मिल रहा हो,
भाई इन्फिनिटिव हम इसको क्यों बार बार कह के बुला रहे हैं? बिकॉज आफ्टर दिस प्रीपोजिशन वी आर गोइंग टू फॉर्म द V1। हमें इस प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, और मैंने आपसे बोला था कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको ये प्रीपोजिशन मिले तो आप इसको प्रीपोजिशन या कंजक्शन के फॉर्म में बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसको बोला जाएगा इन्फिनिटिव। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि ऐसी कंडीशन में जो इन्फिनिटिव का रोल होता है वो गोल, पर्पस, एथिकल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को बताने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी बात ये बताई गई थी बेटा कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ आपको इन्फिनिटिव टू के दर्शन हो रहे हैं तो उस समय एडवर्ब टू अपने आप में नेगेटिव सेंस को कैरी करेगा। कैसे? ही इज टू ओल्ड, वो इतना बूढ़ा हो गया है, टू स्टैंड प्रॉपरली, कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। देख लीजिए बेटा, कहीं यहां पर नो, नॉट, लेस या लैक जैसे वर्ड मिल रहे हैं? नहीं है। लेकिन अगर एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू कैरी कर रहा है या कंटेन कर रहा है सेंटेंस, तो हमेशा एडवर्ब टू अपने को आपको क्या करता है बेटा? वो नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाता है। जैसे अब अगर इसको चेंज करना है बेटा, और क्वेश्चन में आ गया है आपके सामने कि रिमूव एडवर्ब टू या रिमूव टू करके वो क्वेश्चन देते हैं, तो करना क्या है बेटा? Mention the subject at first. There should be no disturbance in the given helping verb. We are going to change adverb to in form of so. He is so old. Infinitive to will be changed in that. After that, we are going to repeat the same subject. And the sentence is related with present tense. So we are going to apply can not stand properly. आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू वन एंड ऑल। हमने किया क्या बेटा? हमने यही बोला था कि अगर दिया हुआ सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को फॉर्मेट पर या पैटर्न पर रन कर रहा है, तो हमें एडवर्ब टू को चेंज करना है बेटा सो में, इन्फिनिटिव टू को हम चेंज करेंगे दैट में, दैट के बाद बेटा हम क्या करेंगे? उस सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, और अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट को एप्लीकेबल किया जाता है, और साथ ही साथ बचे हुए सेंटेंस को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। एक और एग्जांपल लिख देते हैं बेटा। कि she is too kind hearted to be a successful businesswoman, सॉरी हमने यहां पर बेटा लिखा है बिजनेसमैन, बिजनेस So what we are going to do? Same pattern बेटा, subject, helping verb, adverb to, adjective, infinitive to, V1। अब आप कहेंगे सर यहाँ V1 कहाँ है? भाई it is the basic form in English literature। B की, ठीक है ना, B की जो फॉर्म होती है बेटा वो वर्ब में सबसे बेसिक वर्ब्स माना जाता है, तो इसको भी हम वर्ब के फॉर्म में जो है वो सजेस्ट किया जाता है। तो she is too kind hearted to be a successful business woman। अब करना क्या है? सेम पैटर्न पर अगर ये रन कर रहा है बेटा तो एडवर्ब टू को हम चेंज करेंगे किसमें बेटा? सो में। तो शी इज सो काइंड हार्टेड, इन्फिनिटिव टू को चेंज कीजिए बेटा दैट में, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, सेंटेंस इज रिलेटेड विद प्रेजेंट टेंस, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई कैन नॉट। She cannot be a successful business woman। तो अगर इस पैटर्न पर अप्लीकेबल हो रहा है तो हमें करना क्या है? एडवर्ब टू को सो में चेंज करना है बेटा, इन्फिनिटिव टू को दैट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको लिखा जाएगा। लेकिन ये होगा कब बेटा? कि अगर सेंटेंस जो है बेटा वो इस पैटर्न पर रन कर रहा हो।
क्या एडवर्ब टू के रिमूवल में और भी ज्यादा फार्मूले अप्लीकेबल होते हैं? क्या इसको चेंज करने की कोई और भी प्रोसेस होती है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। एडवर्ब टू के रिमूवल का जो सेकंड पैटर्न है बेटा, जो सेकंड फार्मूला है, चलिए उसको भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। So second formula, if the given sentence is based on the structure subject plus helping verb plus adverb to plus adjective। जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। यहां हमको इस फार्मूले में इन्फिनिटिव टू नहीं दिख रहा है, और अगर इन्फिनिटिव टू नहीं दिख रहा है बेटा तो वी हैव डिस्कस अबाउट इट। इफ द सेंटेंस कैरी ओनली एडवर्ब टू, इट मींस एडवर्ब टू टेंडेंसी इज और इट्स मीनिंग इज मोर देन नीड। इसका मतलब यहां पर हो जाता है बेटा मोर देन नीड, जरूरत से कुछ ज्यादा। तो इसका क्या कहना है बेटा, जरा सेंटेंस देखिए। क्या दिया हुआ सेंटेंस उस फॉर्मूले को बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करता है या नहीं? स्टार्टिंग में बेटा आपको दिख रहा होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको मिल रही होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा आपका एडवर्ब टू, और उसके बाद फिर आपको मिल रहा है एडजेक्टिव। द क्लास इज टू नॉइजी। क्लास क्या है, काफी ज्यादा शोर शराबे से भरी हुई है, ह्यू एंड क्राई का एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब वहां पर करेंगे क्या बेटा कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू नहीं अप्लीकेबल किया गया है तो ऐसी कंडीशन में एडवर्ब टू जो होता है वो अपने आप में मोर देन नीड का सेंस रखता है, और मोर देन का नीड अगर सेंस रखता है बेटा तो उस समय हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज एडवर्ब टू इन ओवर, एक्सट्रीमली, एक्टिवली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो बेटा आप करेंगे क्या, इफ यू आर गोइंग टू चेंज एडवर्ब टू इन ओवर, एक्सट्रीमली और एक्टिवली, you have to place the given words at the suitable place or the place where adverb to is mentioned। अगर आप एडवर्ब टू को ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सिवली में चेंज करना चाहते हैं तो एडवर्ब टू को जहां लिखा गया है बेटा उसी प्लेस पर आप इसे ओवर में, एक्सट्रीमली में या फिर एक्सिवली में चेंज कर सकते हैं बेटा। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू चेंज एडवर्ब टू इन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यू शुड मेंशन इट आफ्टर द गिवन एडजेक्टिव। और ट्रेंड में भी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ही चल रहा है। जैसे अगर हम इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में कन्वर्ट करना चाहें तो व्हाट शुड आवर आंसर, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हालांकि आप इसे अगर ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली में चेंज कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपने ग्रामर की कोई मिस्टेक कर दी है, लेकिन बेटा जो ट्रेंड चलता है वो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ही ज्यादा अप्लीकेबल किया जाता है। तो इट वाज द सेकंड फार्मूला ऑफ चेंजिंग एडवर्ब टू, रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। सो व्हाट आर द रेस्ट मेथड ऑफ using adverb to, and what about the next process of transformation? ट्रांसफॉर्मेशन की और कौन कौन सी मेथड्स हैं? रिमूविंग एडवर्ब टू के प्रोसेस में हमें किन दो फार्मूलों को भी और देखना है, या फिर एडवर्ब टू को हम कैसे अप्लीकेबल करेंगे इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।